Hello everyone, welcome to Health Global. Today we have with us Miss Vaishali Samant, a powerhouse of talent and one of India's most celebrated playback singers and composers. From collaborating with the legendary A.R. Rahman on iconic tracks like Chalkare to redefining Marathi music scene with hits like Komri Palali and Aika Dajiba, her music continues to resonate across generations. Let's deep dive into her journey. I am Samek and you're watching Mindspeak. Okay, let me begin by asking you what inspired your journey into music? Oh, music has been there in my family as what should I say, a part of living. Nobody is professionally there in my family, but एक होता है ना हर त्योहार होता है, कुछ ना कुछ घर पे functions होते हैं, and music always had been a part of everything. And I was learning also, but doing it as a career, I had never thought initially. But eventually, as I started participating in different competitions in my college, that confidence started building, the enthuse started building, and then there was this competition called Meri Awaaz Suno many Yes, years back, yes, which I had participated, and that gave me an idea, a small idea of what the industry is. What is what is the beauty of being a playback singer, and that craze like that stayed in me, and eventually. Uh, I started getting small opportunities to record, and that triggered the idea of okay, even I can become playback singer. Okay, I must tell you this. I have mentioned this in my earlier interviews also. घर पे रेडियो पे गाना बजता था दोपहर को, of course. रादर रेडियो वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटी. तो मुझे ये लगता था कि उसमें कुछ नाम होते थे कॉमन, जैसे ये गाना आप सुन रहे हैं लता जी की आवाज में लिखा हुआ है, ये नो योर दिस ऑल टिपिकल थिंग्स वी यूज्ड टू हियर. मुझे लगता था कि रेडियो एक ऑफिस है जहाँ पे ये सब लोग, जैसे हम मेरे डैडी ऑफिस जाते हैं वैसे ये सब लता जी है, आशा जी है, ये सब ऑफिस जाते हैं, गाने का काम करते हैं. आई रियली बिलीव दिस कि मुझे भी यहाँ जाना है, दैट एक एंथू स्टार्टेड बिल्डिंग इन मी. एंड देन स्लोली इवेंचुअली आई रियलाइज्ड इंडस्ट्री क्या होती है, रिकॉर्डिंग मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग, वो स्क्रीन पे आता कैसा है. सो दिस ऑल generated that enthu in me, and when people started saying oh you're sounding nice, और जब मेरा पहला गाना रिलीज हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि यस आई कैन परस्यू दिस, आई शुड लर्न. ऑफ कोर्स देयर वाज एन अवेयरनेस आल्सो कि मुझे कितना अभी सीखना है. Mic technique होती है, there are so many aspects in Of playback course. singing which I realized I need to learn, but my journey started. So, growing up, who are your music influences? Oh my God, growing up, yes. So unknowingly, now I realize I loved R.D. Burman Asha ji combination. I loved Madan Mohan Lata ji combination. Then Usha Uttup ji was like Ramba ho. ये सब गाने बचपन से सुनते आ रहे हैं. Then there were bands इंडिया में आए थे, आभा, बोनी एम. So my life was full of all this. एक तरफ मेरी बुआ है जो सुनती थी सब गजल्स, she was crazy for ghazals. So all these music forms were introduced unknowingly, and I realized I liked everything. So whatever was at whatever was pure, whatever was genuinely done based on that genre, that attracted me. So these were my influences around me. Okay, Then आशा जी किशोर दा एक अजीब कॉम्बिनेशन. ओहो. true. सो आई रियलाइज्ड दैट अगर आपको मतलब ये मैं अब बोल रही हूँ, तभी मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ था कि these are like influencers which unknowingly make a mark in True, your very heart, in true. your brain. So that was it. You have a long association with the legendary A.R. Rahman, okay, from the movie Tal to Satya, Lagan, and now Chhawa. So, how was the experience working with him? Please tell us more about your interaction, how you met for the first time. Okay. So ताल लगान where in 1997 से लेकर 2000 तक, तब I can say कि it was I didn't know that time that it was like going to be such a long association. So for Tal, I went there. I sang few lines, but
since I was very new, very raw, it was an amazing experience to work with. हमें यही बताया गया था कि सुभाष घई सर की ये फिल्म है और Mhm. उनको नई वॉइसेस चाहिए जो ट्रेंड है. So I was the part of few voices there, and that's when my destiny, I'll say my destiny introduced me to sir. And ताल हुआ, लगान हुआ. उसके बाद there was a song Chalka Chalka. 2000 April, I sang the first Tamil song Alai Payude. फिल्म का नाम था Alai Mhm. Payude. So Yaro Yarodi was the first song in Tamil I sang for Mani sir and for Rahman sir, under Rahman sir's music. That was a great association. I must say, I learned so much. Mani sir was so down to earth and so grounded, so cool about like, okay, I'm the director. There was no trace of any attitude or any ego or that the weight otherwise is carry कि मैं director हूँ या सब कुछ नहीं था. They were all focused on their work. They just wanted the output, and that taught me so much. So I'll say my association started. Then Sathiya happened, Chalka Chalka. Yes. Yeah. So this went on. Then there was one more film. I sang. मेरा ऐसा है कि मैं ज्यादा पूछती नहीं हूँ. मैं जाती हूँ, गाती हूँ, मेरा काम करती हूँ, मैं निकल आती हूँ. ये एसोसिएशन अब समझ में आ रही है जब मैदान से वापस हमारा काम शुरू हुआ. True. And now when I look back, I feel I'm blessed that I have been working with such a legend. My God. And again, sir also is so grounded, so cool. कि वो कहीं से वो ऑरा जताते नहीं है. उनका सब जो भी है वो उनके काम में है. एंड दैट्स सच अ बिग लर्निंग. अगेन आई विल से दिस इज वेरी हम्बल, वेरी मच एट पीस. एंड आई थिंक वो अच्छा काम निकलवाते हैं सामने वाले से. ये मैं कहूंगी कि वो तब पता नहीं होता है कि हम ये इसका आगे जाके क्या होने वाला है गाने का. लाइक इमेजिन अ न्यूबी लाइक मी सिंगिंग वन आलाप. ओके, दैट टाइम आई हैड नो आइडिया कि ये कहाँ कैसे जाएगा, कैसे आएगा बड़े स्क्रीन पे. एंड देन यू सी वन डे सीडी. रिमेम्बर द सीडी लाइफ वी हैड. Yes. नो Yes. नाउ दिस newbies don't know what is CD, what is cassette. So on the CD you see राधा कैसे ना जले, sung by आशा भोसले जी, उदित नारायण जी and वैशाली सामंत. I was like, okay, I have achieved I have something great happened. So that's the feeling when sir के गाने release होते हैं ना. It's such a, you feel so blessed. वैसे ही हुआ मैदान में भी. I will say that बीच में जो एक gap हुआ था, somehow his team found me and I was back in his team with मैदान. रंगा रंगा करके एक Yes. जो भी उनका साउंड ट्रैक था. It was not a song, but to be a part of sir's work, his soundtrack is like getting into a totally new school, totally new class. You come out as some, कुछ आप सीख के निकलते हो. हमेशा मेरा मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है. और देन केम छावा. मैं क्या कहूँ, छावा की जो सक्सेस है वो हम True. सब जानते हैं. और आओ वीरा जो ये जो लाइन जो भी फीमेल पार्ट था छावा का, वो आई डोंट नो व्हाट शुड आई से. इट वाज अगेन अ ब्लेसिंग के सिवा मेरे पास दूसरा वर्ड नहीं है, दूसरा कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा है कि ये और कुछ नहीं हो सकता. he selected me for this such an important part of this song. The film itself, great feeling, great. और उसके बाद the cherry on the cake was to sing on the same stage. He's standing Mhm. next to sir and singing it for the audio launch was something another level. True. Very true. And then I was wearing that Nawari because it was all about Chhatrapati Sambhaji Maharaj. So like my king. So I was so proud singing that and performing that. तो कुछ पल होते हैं, कुछ दिन होते हैं जो अपने लाइफ में हमेशा हम अपनी यादों में बांध कर रखते हैं ना. वो दिन वो था. Okay, I'll take you back to Sathiya once more because it's one of my favorite movie. Okay, and Chalka Chalka Rai is one of my favorite song. So what makes this song so special? Oh, great. Good to hear that. Yeah, I mean, छलका छलका जब मैं अभी स्टेज पर परफॉर्म करती हूँ ना, कुछ रियलाइजेशन मोड आपको, आपका ओरिएंटेशन बाद में आता है कि अरे सर ने क्या ट्रैक बनाया है इसका. लाइक जेलिंग 2-3 वॉइसेस एंड
बीच में ऋचा जी आ जाती है, उफ व्हाट अ कॉम्पोजिशन, व्हाट एन अरेंजमेंट। वैसे अभी जिंगूचा का हुआ, आई sang फॉर थग लाइफ अगेन, सी 2000 I sang Alai Payude in Mani Ratnam sir's film. 2025 I sing again for Mani sir's film, and it's again a marriage song, Jingucha, in Tamil. So when I went there for release function, I got to know that, now I know that they out there they know me as यारो यारोड़ी गर्ल। जैसे बॉम्बे में, यहाँ महाराष्ट्र में, वो अदरवाइज मुझे जाना जाता है ऐका दाजीबा गर्ल के नाम से। Yes. हाँ, सो अभी थोड़ा चेंज ये हुआ है कि साउथ में ये लोग मुझे कहते हैं अलाई पायुदे गर्ल, एंड हियर नाउ दे कॉल मी छावा गर्ल। एक होता है ना वो टैग लगाने की ऑडियंस की आदत होती है, गुड और बैड आई डोंट नो, बट एक आइडेंटिटी हो Of जाती है course, it's आपकी। great. हाँ, तो अभी अभी फिलहाल मैं छावा गर्ल हूँ। Okay, so Komdi Palali, Aika Dajiba, they are like cultural anthems they have become. So, did you anticipate this kind of response? Okay, for Aika Dajiba, I will say a surprise was anticipated. वो सरप्राइज Okay. इतना बड़ा हो जाएगा ये पता नहीं था, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट इंडी एल्बम। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2003, जब Yes. इंडी ये टर्म भी नहीं आई थी। सो आई ट्रूली कॉल माई सेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सिंस देन। सो मेरा वो पहला एल्बम था, एंड वी I want, I'll not say I, we, rather me, Sagarika, Avdut, we were a team. So we wanted to do something which maybe even we have not done before, and audience has not heard. Something which serves is like a new dish we wanted to serve. Aika Dajiba took almost year. Okay. एक साल एक ही गाने पे काम किया हमने, because we wanted to create a different track which will please the listeners ears, which will make a statement. Yes, so जब तक दिल को ठंडक नहीं पहुंचे तब तक काम करना है, ये डिसाइड था। कहाँ तक पहुंचेंगे पता नहीं था। तो आई रिमेम्बर 2002 दिसंबर में आई फाइनली आई सबमिटेड द ट्रैक टू द कंपनी कि भाई ये लो, मेरे से ये काम हो गया है, दिस इज द बेस्ट आई कुड डू विद दिस सॉन्ग। एंड देन तभी सुन के मजा आ रहा था, जब हम स्टूडियो में बैठ के एनालाइज कर रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, वेदर वी आर सर्विंग द राइट डिश। So somewhere we were convinced कि we have done our work nicely. I don't know how the audience is going to take it. अच्छा, उस वक्त काफी चैनल्स थे, रिमेम्बर म्यूजिक चैनल्स Yes. बहुत Yes. थे, और लाइक सोशल मीडिया कहाँ था, बिल्कुल नहीं था तभी। सो वॉट एवर द एंटरटेनमेंट वॉज ओनली, जो भी म्यूजिक एंटरटेनमेंट था वो उनका जरिया था चैनल्स, MTV, वी फॉर यू, देयर सो मेनी चैनल्स। सो फॉर the artist, the ultimate goal that time was to bring the video and the audio on the channels. That was the True. ultimate thing कि अगर चैनल ने गाना ले लिया मतलब अच्छा है, Of because they course. had their own filters and standards. अभी ये हुआ कि जब गाना रिलीज तो हो गया, पर आई थिंक फॉर अ वीक और सो देयर वाज some kind of a confusion कि ये है क्या बनाया इन लोगों ने। एंड देन eventually what happened, the audience started demanding it, because तभी जो private channels थे, they picked up the song, and then eventually all the Started main trending. channels started playing it, and then radio started playing it. For me and for my family, मेरा गाना रेडियो पे बज रहा है, it was such a like a party किया हम लोगों ने उस दिन। Of course. It was my somewhere back in my mind, it was my dream कि जैसे लता जी है, आशा जी है, कितने सारे नाम, उषा जी हैं, इनके सबके नाम मैं अगर रेडियो पे सुनती हूँ, लोग इतने करोड़ों लोग उनका गाना सुन रहे हैं आज, वैसा मेरा भी सुने, मैड विश यू कॉल इट। So I was very happy, and then Aika Dajiba made a history. During that time, say I think 2004 or something, Komdi Padali happened, and Komdi Padali का एक सरप्राइज ये बताती हूँ, हुआ गाना हुआ, फिल्म रिलीज हुई। इंडिपेंडेंट और फिल्म में यही मेन फर्क है कि इंडिपेंडेंट गाना ना अपने हाथ में होता है कि हम प्रमोट कैसे करें, क्या करें, वेराज फिल्म के गाने का सक्सेस समवेयर, फिल्म के म्यूजिक का सक्सेस डिपेंड्स काइंडली ऑन द फिल्म। फिल्म आ गई, गाना भी रिलीज हुआ, अगेन इट वाज समथिंग डिफरेंट, समथिंग अनयूजुअल। एक साल बाद सडनली वो गाना हर जगह बजने लगा। सो अगेन आनंद शिंदे जी
माय गॉड, मतलब उनका जो फैन फॉलोइंग है इट इज अनबीटेबल। आई रियलाइज लेटर कि मैंने किनके साथ गाना गाया है। ओ माय गॉड, एंड दैट सॉन्ग बिकेम अ क्रेज, ट्रू। क्रेज इवेंट्स में। सो आई हैड टू सॉन्ग्स, ऐका दाजीबा एंड कोमड़ी पड़ाली। उसके पहले चमचम हो गया था, चमचम करता नशीला ये बदन। सो आई हैड अ पैक ऑफ दिस थ्री वेरी पावरफुल ट्रैक्स विथ मी, which gave me, and I really thank my friend Kedar Shinde, who's a director of this film, both the films, for selecting me for these two songs, and of course my friends Ajay Atul. So, what more an artist will ask for? आप बताइए ट्रू। कि मुझे कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था वहां से लेके। अच्छा, इन बिटवीन आई गो बैक टू माय इनिशियल डेज। मैंने ना कवर वर्जन्स बहुत गाए, ओके। समीक, कवर वर्जन्स गाए, डबिंग की। मतलब ऐसे ही नहीं, बहुत लोगों को लगता है अरे वैशाली सामंत क्या आयका दाजीबा मिला हिट हो गई। फॉर 7 years, 7, आई वॉज डूइंग माई माई काइंड ऑफ होमवर्क, आई से। मैंने काफी सारे जॉनर्स गाए। मैंने दीदी के लिए डबिंग की है, अलका जी के लिए डबिंग की है। मैंने ऐसे कई डबिंग जहाँ पे आपको ओरिजिनल गाना गाने के लिए बुलाया जाता है पर पता होता है कि ये अपनी आवाज में नहीं रहने वाला, it's for the help of the music director to create the song, but that ओके। was again so much learning कि नया गाना गाना कितना difficult है, how to justify the composition. I think this all taught me and made me ready for the new song. कभी ऐसा हुआ है कि आपने डब किसी के लिए किया लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर को आपका सॉन्ग इतना अच्छा लगा कि आपको ही मिल गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, you nailed it. So my first film song in Hindi was for this film तुझे मेरी कसम, ओके। which was featuring रितेश देशमुख एंड जेनेलिया देशमुख। उनकी भी ये पहली फिल्म थी ओके। और ये गाना मैं डब करने के लिए गई थी विजू शाह जी के लिए। ओके, मुझे बताया गया था क्लियरली कि ये आपकी आवाज के लिए नहीं, मतलब आपके लिए नहीं है, वी आर गोइंग टू डब इट। बट आई डब द सॉन्ग एंड देन आई न्यू कि ये मेरी आवाज में, पता था। बट इट वाज नाइस लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड विजू जी गेव हिम हिज लॉट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि चलो गा लो, जस्ट पता है रखने रखना नहीं है इसलिए 5 मिनट में खत्म कर लिया, ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत मेहनत ली मुझ पे, एंड ही मेड, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू यू नो टू जस्टिफाई, टू गिव मी टाइम टू जस्टिफाई दिस सॉन्ग। और उसके बाद 1 महीने बाद मुझे विजू जी का फोन आता है कि ये फिल्म रामोजी वालों की है और उनको आपकी आवाज अच्छी लगी है एंड वी आर कीपिंग योर वॉइस। सो आप बताएं अभी ये क्या है, ये मतलब I again it teaches me that do your job properly 100% with hard work, वो आ जाता है आपके पास। आप बचपन में सोचते थे कि रेडियो एक ऑफिस है जहाँ पर किशोर कुमार, आशा जी और उषा उत्तु सब आते हैं वहाँ पर। आ, आज उस ऑफिस में खुद पहुँच के कैसा लग रहा है? Oh my God, yeah, I feel blessed. I feel कि कितने लोगों को उनका जो सपना होता है, उनकी जो ख्वाहिश होती है, वो पूरी करने का मौका मिलता है। So I'm the lucky one, I feel, and I must tell you here that my husband Dattatray supported me throughout this journey, right from my day one. He's seeing me struggling, he's seeing me, uh, हर दिन अपना नहीं होता है ना, ऐसा भी होता है कि कभी कभी नहीं हो जाता है। सो he's been really patient and very positive about it कि होगा तेरा, तूने डिसाइड किया है ना। बिकॉज एक्चुअली क्या हुआ, आई बिलोंग टू सच अ फैमिली में एजुकेशन एंड अ सिक्योर जॉब, एक ये था कि मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन वो तो चाहिए ही। सो आई डिड माय पोस्ट ग्रेड्स। आई एम बहुत अलग अलग फील्ड था मेरा तब, कोई विश्वास भी नहीं करेगा बट आई एम अ zoologist। ओके। या सो मरीन बायोलॉजिस्ट हूँ मैं, वो किया लेकिन मेरा मन इसी में था। बट आई अंडरस्टूड दैट फैमिली मेरे भले के लिए ही बोल रही है कि आगे जाके, बिकॉज अगेन आई हैड नोबडी इन द इंडस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे कुछ ठोस ये नहीं होता है कि ये करो तो ये मिले, हाँ। देयर इज नो पैरामीटर। इसलिए उनको ये था कि भाई अपनी बच्ची पहले तो एजुकेट हो, खुद के पैरों पे खड़ी हो, उसके बाद जो भी आपके ड्रीम्स है यू गो अहेड। बट आई वाज समवेयर, आई हैड दिस कीड़ा इन मी, आई कैन से कि नो, आई वांट टू ट्राई।
सो आई डिड। वो टफ टाइम था मेरे लिए कि पढ़ाई भी करो और साथ में गाने गाने का जो मेरा एक पैशन था उसे कंटिन्यू करो। सो बट आई थिंक हो गया। आपने मल्टीपल लैंग्वेजेस में गाना गाए, हिंदी, गुजराती, मराठी, आप अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं? Yeah, I think for a singer, singing in different languages is a challenge also. At the same time, it it gives you a further opportunity to reach out to that audience of that language. प्लस मुझे खुद ये बहुत अच्छा लगता है कि हर एक भाषा का ना अपना अपना एक लहजा होता है, अपना अपना एक वो लैंग्वेज वो कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। और अगेन आई ट्रू। गो बैक टू मतलब सैल्यूट टू दीदी, सैल्यूट टू आदरणीय लता जी एंड आशा जी, जिन्होंने उस वक्त इतने अलग अलग प्रकार के गाने अलग अलग भाषाओं में गा के एक एक स्टैंडर्ड सेट किया था। यू नो लाइक लता जी के इतने मराठी ऐसे गाने हैं जो उतने ही प्योर और उतने ही सुंदर बंगाली में गाए हैं उन्होंने। तो मुझे हमेशा यही लगा है कि अगर उस वक्त इन लोगों ने ये काम करके रखा है तो अब तो यार अपने पास सोशल मीडिया है, अपने पास मोबाइल फोन है, कनेक्ट होने के जरिए मीडियम्स बहुत स्ट्रांग है। हमें और एक स्टेप आगे जाके इनका प्रयोग करना चाहिए। मेहनत मतलब मेहनत करने के लिए सपोर्ट सिस्टम अभी पहले से बहुत है। रिकॉर्डिंग टेक्निक्स आर वेरी गुड। सो अगर ये सब है फैसिलिटीज तो हमें और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो और अगेन उस वक्त अननोइंगली मैंने अलाई पाइये गा लिया, मुझे बहुत मजा आया। अगेन दैट मैटर्स टू मी कि मैं क्या काम कर रही हूँ और मुझे उसमें मजा आ रहा है कि नहीं। आई ऑलवेज ट्राई टू आस्क माई सेल्फ कि डिड यू एंजॉय दिस? इफ आई डोंट एंजॉय हाउ द ऑडियंस इज गोना एंजॉय? ट्रू। सो आई रियलाइज कि यस फॉर मी सिंगिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस is a nice happy challenge. That's why I like it and I enjoyed learning that भाषा। वो भाषा आप उस गाने के लिए आप उतना सब सीख लेते हो, उसी बहाने आपको वहाँ के लिरिसिस और वहाँ की जो सिस्टम है सब समझ में आती है। यू गेट टू नो सो मच एंड आई एम सो हैप्पी दैट कलकत्ता में मेरे काफी गाने प्रचलित हैं। अभी अगेन विद जिंगुचा ऑफ कोर्स। आई सी माई सेल्फ सिंगिंग मोर इन तमिल। संस्कृत मेरी फेवरेट भाषा है तो संस्कृत में मैं गाना और चाहूंगी। होप समडे आई गेट मोर वर्क इन संस्कृत। तो ये है मेरा पैशन है इसका और दूसरा कुछ उत्तर नहीं है। आई एंजॉय सिंगिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। पंजाबी पंजाबी, सिंधी, गुजराती। मैंने सिर्फ असमीज में नहीं गाया है। इमेजिन शमिक जी, मेरी जो टीम है वो सब ज्यादा से ज्यादा असमीज है और मैं ओके। हमेशा उनको पूछती हूँ कि यार डोंट यू थिंक आई एम एलिजिबल टू सिंग असमीज? तो बस वो एक ही भाषा मेरी रह गई। मुझे बहुत दुख है बट आई एम श्योर एक ना एक दिन भगवान कभी ना मुझे कभी। मेरा सही असमीज गाना भी देगा। ओके, कैन यू टेल अस अबाउट योर क्रिएटिव प्रोसेस? स्पेशली आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं कोई परफॉर्मेंस के पहले? ओके इसमें काफी सारी चीजें आती हैं। जब मैं रिकॉर्डिंग जैसे मैं अभी आई हूँ, मैं कहाँ हूँ पता है? अभी सुरेश जी की आजीवासन अकेडमी जो है उसके ओके। बाहर गाड़ी में बैठी हूँ क्योंकि मेरी अभी अंदर एक बहुत खूबसूरत गाना है। नीलेश मोहारिर करके बहुत उम्दा संगीतकार है, उनके लिए मैं गाना गाने आई हूँ यहाँ पे। उसके पहले मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो आई लाइक प्रैक्टिसिंग द सॉन्ग। ओके ओके। जो जब मैं इंटर होती हूँ स्टूडियो में गाने के लिए तब मुझे पता होना चाहिए मैं क्या गा रही हूँ, whether I fit the bill, whether that I justify the song, especially some music directors like नीलेश मोहारिर। मैं प्रॉपर गाना उनसे सीखती हूँ। I learn it, I get it into the system. This I'll prefer। अगर ये हमेशा नहीं हो सकता है but few music directors I make it a point because मुझे पता होता है कि मैं डायरेक्टली अगर जाती हूँ स्टूडियो में तो I may not get the nuances, small चीज, छोटी छोटी चीजें डिटेलिंग होती है गाने में जो अगर मैं मिस करूं तो देन आई एम नॉट जस्टिफाइंग द सॉन्ग। ट्रू। सो अभी तो फैसिलिटीज है, फोन पे हम गाना मंगा लेते हैं, लिरिक्स मंगा लेते हैं। आई प्रैक्टिस, आई अंडरस्टैंड द जॉनर। मेरी तरफ से कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर का सर भी खाती हूँ मैं कि भाई ये वर्ड मुझे यहाँ इसका वजन ये अच्छा नहीं लगता है। आई लव टू स्टडी द सॉन्ग फर्स्ट बिफोर आई एंटर द studio because that saves time, that saves
द थिंकिंग प्रोसेस जो पहले हो जा, होमवर्क हो जाना चाहिए पहला, तभी आप वो टेस्ट के लिए जा सकते हो। ये मेरा इतने सालों का भी एक्सपीरियंस है जो आई आई नाउ अप्लाई, आई एटलीस्ट आई कैन। पहले होता था कि अरे क्या आजकल तो आ जाओ स्टूडियो में कर लेंगे, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्योंकि देखिए किसी की उम्मीदें लगी हुई होती है गाने पे, किसी का पैसा लगा हुआ होता है। सो आई फेल्ट नो, आई शुड बी रेस्पॉन्सिबल। और तब से मैंने ये ठान लिया है कि अगर गाना मुझे पहले नहीं मिला ना, तो भाई तुम रुको, बाद में रिकॉर्ड करो। So this is how I prepare myself from my end. See, I know one thing. मेरी तरफ से जो 100% है मुझे देना चाहिए True. गाने को। उसके बाद क्या होता है वो ऊपर वाला डिसाइड करता है। I should be happy and content when I come out of the studio after True. recording. That's my parameter. That's my litmus paper taste. Yes. Then for the performance, for the live performance, oh my God, अगर एक महीने बाद मेरी इवेंट है तो मैं आज से उसका स्ट्रेस लेना शुरू करती हूँ। हर चीज करेक्ट होनी चाहिए, रिहर्सल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, बिकॉज अगेन अ परफॉर्मेंस इज अगेन यू आर कनेक्टिंग विद समबडी हु इज ट्रस्टिंग यू फॉर दैट। True. ऑडियंस अपना टाइम निकाल के ऑल द वे कहाँ कहाँ से आती है यार, गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती है, 100 चीजें करके ऑडियंस आपको सुनने आती है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। मतलब जब मैं इंटीरियर्स में जाती हूँ ना, और स्पेशली आई टेल यू वन एक्सपीरियंस। लेडीज स्पेशल शो था। Okay. वो लेडीज 4 बजे से 7 बजे शो था, 4 बजे से वहां पे आके बैठी थी ताकि जगह पकड़े। आई सेड यार चलो शो जल्दी शुरू करते हैं, बिकॉज इन लोगों को घर पे जाके खाना बनाना है। सो अगर आप मिट्टी से जुड़े रहते हो ना, मेरा ये एक्सपीरियंस है, आप उस मिट्टी से, यू शुड अंडरस्टैंड योर ऑडियंस कि True. उन्होंने क्या क्या सफर किया है आप तक पहुंचने के लिए, आपका शो देखने के लिए। आपको वो बड़ा बनाते हैं। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर टाइम एंड देयर एक्सपेक्टेशंस। सो आई ऑलवेज ट्राई, और इसके लिए मैं मेरी जो टीम है, मेरे कम से कम 6-7 लिस्ट बनती है। वो बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है कि अरे ये नहीं, ये लेते हैं। और देन समटाइम्स सम सॉन्ग्स आर एरिया स्पेसिफिक आल्सो, लैंग्वेज Okay. स्पेसिफिक। Of course. हाँ, कि कुछ मैंने देखे मराठी में, अभी इतना महाराष्ट्र में ही इटसेल्फ इतनी भाषाओं की अलग अलग रूप है। जैसे खानदेशी, मैंने अभी एक खानदेशी गाना गाया है। मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं मुझे कब ऐसा शो आए जहाँ पे ये गाना मैं ऑडियंस के सामने गाऊं। अगर गोवा जा रही हूँ तो आई सिलेक्ट फ्यू सॉन्ग्स फ्रॉम माई किटी विच रिप्रेजेंट गोवा, तो मैं उन ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। सो दिस इज हाउ इतने साल चल रहा है। How's your experience judging reality show like Saregama Pa, Marathi and Saregama Pa, Little Champs? ओके, इसमें मैं आपको बताऊंगी मैंने प्रिपेयर कैसे किया। जब मुझे इंक्वायरी हुई पहली बार सारेगामा की कि आपको जज बनना है, ऐसा यार ये तो बहुत अलग चीज हो गई अभी, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट True. रेस्पॉन्सिबिलिटी। और माय मेरे घर पे तो तुझे जज बनाया है, आई एम श्योर उनको कोई और मिला नहीं होगा लास्ट मोमेंट तुझे बनाया है। दे आर टीजिंग मी एक्चुअली। देन आई आस्क्ड माई सेल्फ कि मुझे कैसे बिहेव करना है, मुझे क्या, मेरा जजमेंट का पैरामीटर्स कैसे होना चाहिए, मुझे क्या बोलना चाहिए। बहुत सोचा 2-3 दिन आई वॉज लाइक क्या कहते हैं, एक फ्री रेडिकल स्टेज होता है इंसान का कि आपको पता नहीं होता है आपको करना क्या है, यू जस्ट कीप ऑन हंटिंग। वन मोमेंट आई रियलाइज कि ओके, दे हैव कॉल्ड मी बिकॉज वट एवर आई हैव डन टिल नाउ, आई एम श्योर दे लाइक्ड इट, दे लाइक्ड मी वट एवर आई हैव डन फॉर। So I think I should be what I am. That was my answer to myself. I should not be something which I'm not otherwise. I should be real. I should be honest. मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं रहती हूँ। उसके बाद अगर उनको मुझे मुझे नहीं रखना है, वो उनकी मर्जी है। ये मेरा खुद को आंसर था। एंड देन माय कंफ्यूजन वाज क्लियर। I went there. My colleague, my buddy, my friend Avdut was there. He was little experienced. वो पहले ही ये जजिंग का शो कर चुके थे. So I asked him कि do you want me? He was all chubbly bubbly like that. Then he also said, no, you be what you are. Let me be what I am. So that was like unsaid understanding between us कि ठीक है, तुझे जैसा रखना है एटीट्यूड तू रख,
मुझे जो करना है मैं करूंगी. आई डोंट वांट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस. एंड एट द एंड ऑफ द डे द पार्टिसिपेंट्स का जो एज था वो इतना सेंसिटिव था, छोटे थे, बच्चे थे. True. सो वी एट आई थिंक पहला एक दिन स्ट्रेस में मेरा गया. फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ शूट आई वॉज लाइक मुझे पता नहीं है कुछ भी, ये कॉम्पिटिशन वगैरह वो उनके लिए है. आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस. आई एम गोइंग टू बी विद द किड्स लाइक अ किड. और वो प्रोसेस बहुत अच्छा गया. इट वॉज लाइक ऑलवेज रिमेम्बर्ड. उसके बाद दूसरे चैनल के लिए भी मैंने समहाउ ये हो रहा है कि मुझे बच्चों को ही जज करने बुलाया जा रहा है. तो मुझे अभी भी घर पे चिढ़ाते हैं बिकॉज यू दे से बिकॉज यू आर अ किड दे कॉल यू फॉर किड्स शो. I said, as long as I enjoy doing it, I'm going to do it. So, by God's grace, it has been a great experience. मुझे अच्छा लगता है कि जब मुझे कोई डिक्टेट नहीं करता कि आप ये बोलो, ये करो. And by God's grace, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है. I am what I am. I say what I want to say. And I learn. I must say, these kids teach you so much. Of यार course. आता कहाँ है यहाँ से इतना कॉन्फिडेंस. स्टेज पे ये लोग दिखते भी नहीं है, इतने टाइनी होते हैं, बट जब माइक हाथ में आता है शेर बन जाते हैं सब. सो इट इज ऑलवेज देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि मैं इस शो में क्यों हूँ. बिकॉज गॉड वांट्स मी टू अंडरस्टैंड, टू गेट दैट एनर्जी फ्रॉम देम एंड बी पॉजिटिव. सो ये सब चीजों के लिए अब मैं जाती हूँ वहां पे. ओके, सो लंदन मिसल जैसे प्रोजेक्ट में आपने म्यूजिक कंपोज भी किया है. ओके, सो प्लेबैक के कंपैरिजन में मतलब कंपोजिंग कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? Okay, till now I have composed for 8 films. Then I have Okay. composed many independent tracks. जहाँ फिल्म्स की बात आई है, मेरी एक क्रेज थी. क्रेज समझिए कि मेरी एक मेरा वे ऑफ थिंकिंग है कि ये सब लेजेंड्स जो है, आदरणीय लता जी है, आशा जी है, उषा उत्तुप जी है, शंकर महादेवन या सोनू जी हैं, इनके साथ अगर मुझे काम करना है तो मैं इंतजार करूं कि कोई आए, मुझे बुलाए, तब मैं इनके साथ गाऊं. या ऐसा भी हो सकता है, वैशाली व्हाई डोंट यू ट्राई. अब वो दौर नहीं है कि जहाँ पे एक मेल म्यूजिक डायरेक्टर होता है और एक फीमेल आके गाती है, बस उसका वही जॉब है सिर्फ आके गाओ. we can go beyond this. Can we Of break course. the pattern, the set pattern, जो कि एक्चुअली आदरणीय लता जी ने पहले ही कर चुकी है. वो आनंद घन नाम से इतने खूबसूरत गाने कंपोज किए हैं. उस वक्त अगर वो ये बैरियर नहीं रखा उन्होंने, तो ये तो एज है एक्सपेरिमेंट का, तो हमें तो करना ही चाहिए. एंड मेरा जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक, मेरा जो एज एन एल्बम का काम चल रहा था, तो मेरे थर्ड एल्बम में एक गाना कम था. अवधूत वाज ऑलरेडी बिजी विथ हिज फर्स्ट फिल्म म्यूजिक एंड फिल्म डायरेक्शन. वो और एक स्टेप आगे निकल चुका था. एंड फॉर हिम दैट पीरियड वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी रियलाइज्ड इट कि शायद हो सके कि थोड़ा वक्त लगे. उसमें घोटाला नाम का एक गाना मैंने कंपोज कर दिया. कंपनी को वो अच्छा लगा, सागरिका म्यूजिक को. एंड एक्चुअली दैट सॉन्ग हैपेंड, द वीडियो हैपेंड एंड लोगों को वो बहुत अच्छा लगा. उसके बाद केदार शिंदे के ही फिल्म के लिए मैंने एक वी आर हनीमूनर्स करके गाना रिकॉर्ड किया. देन गलगले निघाले बाबा वाज अ सुपर हिट. जो एक होता है ना, एक म्यूजिक डायरेक्टर को एक तो क्लेम टू फेम होना चाहिए, तो गलगले निगाले वाज माय फर्स्ट क्लेम टू फेम एज अ म्यूजिक डायरेक्टर. उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो सब मेरे जो आइडल्स है, जिनको मैं रेडियो में सुनती आ रही हूँ बचपन से, इनके साथ काम करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा. उषा उत्तुप जी, माय क्या कहे, वन ऑफ माय आदर्श, एंड आई वाज क्रेजी फॉर हर वॉइस. सो केदार के ही एक फिल्म के लिए मैंने उषा जी को रिक्वेस्ट की. एंड अगेन इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, द वे दैट लेडी टुक द सॉन्ग अहेड. खो खो नाम की फिल्म थी जिसके लिए मुझे एक वेरी हैपनिंग एंड स्पोर्ट्स वाला गाना चाहिए था. आई couldn't think of anybody else but Usha ji. And believe me, it was that song. She took the song somewhere else. She was so cool. She was so today, you know. इतने साल काम करने के बाद एक आर्टिस्ट की जो थ्रस्ट होती है काम करने, वो मुझे उनमें दिखी. मैंने बहुत सीखा उनसे कि काम करने का डेडिकेशन क्या होता है. उफ. She recorded the track for me and she sent me from Calcutta. It was so perfect. It was so perfect. And she had like वो जो surrender होता है ना काम के प्रति, वो मैंने सीखा उनसे. And same thing when I got an opportunity to work with Lata ji. Imagine me as a music director and Lata ji singing for me. Isn't it something wow? And it Amazing. happened actually. Yeah, it's amazing. And then I get to know after the song was released everything कि उन्होंने एक interview दिया
जिसमें उन्होंने कहा कि आई वॉज द 4th फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर इन हर करियर फॉर whom she had sung. ये एक्सपीरियंस की जो पूंजी है मेरे पास, that has taught me so much, that has grounded me more. And Sonu ji, again, एक गाना था Matching Navra, and Okay. I was like hellbent on I want Sonu ji's voice in this, nothing doing. And thankfully my producer accepted it. सोनू जी आए 15 मिनट में वन या टू टेक्स मैक्स, जो भी करेक्शंस थे उसके साथ, he nailed the song. So all this teaches me so much, teaches me I have to grow more, I have to go ahead more, and I take it as a blessing also. And I feel it's worth taking all these efforts. True. It's worth learning through this process, and much more I have to learn. अभी तो मुझे मतलब arrangements, all the technical aspect of recording सीखना है. I hope उसके लिए भी मुझे कुछ कोई अच्छे गुरु मिल जाए. I'm sure I'll get. Since we spoke about your learning, let's talk about some challenges. Okay, what are the challenges that you have faced in your journey? Challenges, okay. When I started my career, हम लोग के गाने रिलीज होते थे तब थे कैसेट्स, okay. उसके बाद एक दौर आया जिसमें आए सीडीज. एक वक्त आया सीडीज मार्केट से निकल गई. In between there were 4 to 5 years, कोरोना के पहले की बात कर रही हूँ मैं, जब there was no proper media for a singer or a music director to reach out to the audience. सीरीज जा रही थी, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स उतने नोन नहीं थे जो अभी क्लैरिटी आ गई है ना. सो सच चैलेंजेस मैंने देखे हैं कि इसमें सर्वाइव होना, ट्रस्ट मी इट्स वेरी डिफिकल्ट. अब काम तो कर रहे हो लेकिन रिलीज नहीं हो रहा है, ऑडियंस तक पहुंच नहीं पा रहे हो आप, तो वो यू बिकम स्टैग्नेंट. इंडस्ट्री वाज कंफ्यूज्ड कि करें क्या अब. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए इंडिया में प्रॉपरली ड्यूरिंग द कोरोना, क्योंकि उस वक्त बाकी कोई एंटरटेनमेंट का साधन भी नहीं था. Yes. म्यूजिक या बाकी कुछ भी सुनने के लिए देयर वाज नो मीडिया. सो एक्चुअली स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को इंडिया में सेट होने के लिए वही पीरियड था. तब जाके क्लैरिटी आई, तब जाके कनेक्ट्स बने, फिर से इंडस्ट्री शुरू हुई. सो ये एक चैलेंज था हम सबके लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए. अच्छा, जब ना एक होता है कि जब आपके पास 3-4 गाने हिट होके आपका नाम हो जाता है, नाम बनाने का अपना एक चैलेंज होता है, और सस्टेनिंग का डबल चैलेंज होता है. आई फील टू मेंटेन व्हाट यू हैव अचीव इज इक्वली और अदर से मोर डिफिकल्ट, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस बनी हुई होती है, ऑडियंस को आपको सुनना भी है. जैसे इन माय केस, ऑडियंस को ऐकादाजी बात सुनना है, कॉमेडी पड़ा सुनना है, बट वैशाली से उनको और भी सुनना है, यू नो. तो मेरी लाइफ में भी 2-3 साल ऐसे गए कि जब गाने रिलीज, देखिए अगेन काम हम करते हैं, वो हिट होना है नहीं होना है ये एस्पेक्ट ही अलग है. तो आई हैड दैट फेज इन माय लाइफ वेयर गाने मैं रोज जाके कुछ ना कुछ काम करती थी, लेकिन वो प्रॉपर यही वो दौर था कि जब सीडीज जाके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स सेट नहीं हुए थे. So there was no proper medium to reach out to the audience. तब वो 2-3 साल were very very challenging. They were not frustrating, but they were challenging. And I always look out कि कहाँ जा रही है इंडस्ट्री, क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ. I keep on asking myself and I keep on doing this study. And तब ऐसा दौर था कि वो अगेन आई कॉल इट अ फ्री रेडिकल स्टेज, की जहाँ समझ में नहीं आ रहा था किसी को कि आगे गाड़ी कैसे चलने वाली है. See, this becomes the day it becomes your bread and butter. You start thinking about all these things. True, very true. हाँ, so ये challenges आए, but by God's grace things shifted to security before it was too late. So again अभी ट्रैक पे आ रही है गाड़ी सबकी, not just me, कि अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है. We know the end point कहाँ होना चाहिए गाने का. यही होता है कलाकार के लिए कि अपना किया हुआ मेहनत, अपनी की हुई मेहनत कहाँ जाने वाली है, ये जब पता होता है तब उसके हिसाब से आप वो मेहनत करते हो, उसको एक दिशा मिल जाती है. सो दिशाहीन होना ये सबसे बड़ा अब ये आपके प्रश्न का अभी मुझे उत्तर मिल रहा है कि दिशाहीन होना, नो डायरेक्शन इज द रिस्क इन एनी आर्टिस्ट लाइफ. कोई डायरेक्शन ही नहीं है आपके काम का, नतीजा ही नहीं पता, वो सबसे डरावनी चीज होती है. एंड आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम दैट. ओके, इनिशियली जब हम लोग देखते थे, जब रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बहुत सारे म्यूजिशियंस पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे, बट अभी मोस्टली सब कुछ कंप्यूटर या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू से ही हो रहा है.
तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री कैसे, मतलब इसको आप इवॉल्व बोलोगे कि मतलब समहाउ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स वहाँ पर चले गए बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी? एक ये भी मेरे लिए चैलेंज है कि आई वांट टू रिकॉर्ड लाइव एक गाना अशोक पत्की जी के लिए। ऐसा बहुत सालों पहले हमने किया था एंड ट्रस्ट मी, आई एंजॉयड द एक्सपीरियंस। 3-4 बार रिहर्सल हुए, पहले उनके घर पे जाके प्रैक्टिस हुई, तो ये सब मैंने बहुत एंजॉय किया था। अब मुझे लग रहा है कि मेरे लिए, खुद के लिए, मुझे ये चैलेंज लेना चाहिए कि मुझे म्यूजिशियंस के साथ लाइव गाना है, रिकॉर्डिंग, और ये मैं करूंगी, क्योंकि मेरे लिए अपने आप को चैलेंज चैलेंज में रखना अच्छा लगता है, एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। या विद द टेक्नोलॉजी थिंग्स हैव लिटिल बिकम वेरी इजी, बट हुँ, एट द सेम टाइम मुझे ये डर है कहीं टेक्नोलॉजी इतना भी ना सर चढ़ के बोले कि जहाँ पे जो ह्यूमन इमोशंस है उसे कॉम्प्रोमाइज करें। इसीलिए मैंने ही ये खुद अपने लिए डिसाइड किया है कि उस इमोशन को मैं खुद अपने लिए एज एन आर्टिस्ट जिंदा रखूं, कि जहाँ पे मेरे पास लाइव म्यूजिशियंस हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं गा रही हूँ वहां पे, ये होना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो एरा आए समहाउ, इट्स अ बिग स्टेटमेंट, सो ये स्टेटमेंट मैं जनरलाइज नहीं करूंगी, ये मैं अपने लिए करूंगी कि मुझे वो दौर मेरे लिए, खुद के लिए एक्सपीरियंस करना है। उतना तो मैं कर सकती हूँ, मैं पूरी इंडस्ट्री को शायद नहीं बदल पाऊंगी, पर मैं अपने आप के लिए एज अ सिंगर मैं चाहूंगी कि मेरे ऐसे एक एक प्लेलिस्ट मेरी हो कि ये सब प्लेलिस्ट ना वैशाली ने लाइव रिकॉर्ड की है। आई थिंक मेरा अगला चैलेंज है। ओके, मैं जिस सिंस टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, तो एक सवाल था, जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी एआई के थ्रू से मोहम्मद रफ़ी का भी वॉइस में गाना, नए कोई सॉन्ग को गाया जा रहा है, तो ये एआई से थोड़ा-सा डर लगता है? मतलब मैं सिर्फ़ आपके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, ओवरऑल एज़ अ इंडस्ट्री, एज़ एन आर्टिस्ट। एआई के मिस हैंडलिंग से डर लगता है। एआई के मिस हैंडलिंग, देखिए वो टेक्नोलॉजी है, उसे पता नहीं है उसे कहाँ यूज किया जाना है। सो सही और गलत हमें डिसाइड करना है कि एआई के थ्रू अगर किसी का मजाक उड़ाना है तो ये गलत बात है। वो सिंगर हो, एक्टर हो, या कोई भी हो, उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने वालों की गलती है, ये मैं कहूंगी। टेक्नोलॉजी है, वो तो इवॉल्व होगी ही। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, वी नो दिस यूनिवर्सल रूल, राइट? सो उसमें वो चेंज को हम पॉजिटिवली स्वीकारें, उसका सही उपयोग करें, ना कि उस पर डिपेंड रहे। दिस इज माई स्टेटमेंट कि टेक्नोलॉजी इज ओनली टू यूज बट नॉट टू डिपेंड। सो मैंने अपने आप के लिए डिसाइड किया है कि ये सब चीजें मेरे इर्द गिर्द भी नहीं होनी चाहिए, कि जिसमें इट्स वेरी इजी टू किसी का मजाक उड़ाया जाए, किसी के बारे में गलत बोला जाए, या जस्ट बिकॉज यू कैन गेट रफीजीज वॉइस सो इजीली, जस्ट अप्लाई इट। अरे वो कितनी हुँ, बड़ी हस्ती है, आप उनका इस तरह, मतलब जस्ट बिकॉज यू हैव सम टूल्स, इट्स लाइक आपके पास मशीन गन है, आप किसी को भी मारते छोटो, ये बात है। तो आपको सही ढंग से, सही तरीके से, सही कारण के लिए अगर इसका यूज किया जाए तो इट विल बी पॉजिटिव, दैट्स ऑल आई ट्रू। वांट टू से। और अगेन, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ लोगों ने क्या करना चाहिए। बट ये भी है कि टेक्नोलॉजी जो है ना, वो कुछ समय के लिए बहुत नई होती है, इनोवेटिव हुँ, होती है, उसकी क्रेज आती है। जैसे अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब बदलता दौर है, और कुछ साल में कुछ और आएगा यार, अपने को पता नहीं है उसका मैं प्रयोग कैसे करूँ, ये मुझ पे है, और मुझे वो कंट्रोल करना चाहिए, इतना मुझे समझना है। सो एआई आए या कोई भी आए, मजाक नहीं होना चाहिए बस कलाकारों का। Okay, my last question to you. Any word of advice for the aspiring musicians and composers? ओके, एडवाइस ऐसा नहीं कहूंगी मैं आपको, उनको एक ये कहना चाहूंगी कि हम जब नए थे तब एक दौर था जहाँ पे सोशल मीडिया नहीं था। हमने जो काम किया वो लोगों तक पहुंचाते पहुंचाते हमें भी चैलेंजेस आए। आज के दौर के जो नए सिंगर्स हैं, जिनको अभी तक उनकी आइडेंटिटी नहीं मिली है, वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं। सोशल मीडिया इज डेफिनेटली अ टूल, बट इट्स नॉट एवरीथिंग। बहुत लोग, मैं ये देख रही हूँ कि बहुत डिपेंडेंट हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज अगेन उनकी अपनी एक जर्नी है, अपना एक सर्च है, उनके लिए सोशल मीडिया बिकम्स फर्स्ट हैंडी थिंग टू रीच आउट। बट मुझे लगता है अपने आप को उन तक सोशल मीडिया के लिए काम मत कर, ये मेरा जरूर कहना है। कि बहुत मैं सुनती हूँ आजकल, अरे ये ना रील्स के लिए अच्छा है, गाना अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, उसके बाद उसके रील्स जिसको जो बनाना है वो बनाए।
आप अगर सोशल मीडिया के लिए काम करोगे वो वहीं तक सीमित रहेगा। सो वही एक, मैं इनफैक्ट मेरे यहाँ भी जो म्यूजिक डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, अक्सर ये मैंने सुना है, ए दिस इज गुड, ये इसका रील अच्छा बनेगा। तो मैं डरती हूँ इसमें कि मुझे इस साइकिल में नहीं जाना है। मुझे मेरा काम अच्छा करना है, जो सब्जेक्ट मुझे दिया गया है उस पे काम करना है, ना कि सोशल मीडिया के लिए काम कर। सोशल मीडिया बाद में आता है, काम होने के बाद। सो बस ट्रू। इतना ही मेरा एक, मैं सीनियर जूनियर ये मानती नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी ज्यादा समय इस इंडस्ट्री में हूँ उनसे, इसलिए मैंने ये जो देखा है उस वो मैं शेयर करूंगी। आई एम नॉट इन अ टीचिंग जोन, दे नो मच मोर देन मी, आई एम सिंसियरली टेलिंग यू। जो जब मैं शुरू हुई थी मुझे जितना पता था उससे कई चीजें उनको पता है, उनसे सीखने लायक है। सो मेरा एक एक्सपीरियंस यही मुझे शेयर करना है कि डोंट वर्क फॉर द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स आते हैं, वर्क फॉर योर पैशन, वर्क फॉर द सब्जेक्ट, वर्क फॉर पीपल, result will come. Okay. Thank you so much, Miss Sawant. It was lovely talking to you. And thank you for taking all this time for us.